when you call it a masala film, I just like it Yeah. used कि मसाला के Oh, अलावा जो फिल्में होती हैं वो इसका मतलब बिना मसाले के होती हैं और उनको लुफा खाना पड़ता है। आज जो यंग लड़का बनाएगा उसने एक फिल्म बनाई कपूर सन्स एंड सन्स, उसने भी राम लखन को पैदा किए थे, लेकिन वो राम लखन आज के थे जो कि जिनको अपना सेल्फ ज्यादा है देन की भाई के इंटरेस्ट है ना। तो सब राम लखन कल नायक के बारे में पूरी मार्केट आज मेरे पीछे है, पूरी इंडस्ट्री स्टूडियोज हैं कि वो दे ऑल वांट टू मेक। तो मैं उन्हें कहता था भाई हम तो नहीं बनाएंगे, मुख्तार विल नॉट बी मेक अ फिल्म, we can sell you the rights, you make the film the way you would like to make the film. so firstly, welcome to Pinkula. It's lovely having you here. Thank you. So firstly, we have all been, we have all watched all of your films and, grown up watching all those masala entertainers that you have made through the years. And now we see you enter this comic thriller space. Could you tell us something about the idea of exploring this genre with 36 Farmhouse? Tell me one thing. Have you read Mahabharata? I've seen various renditions of Mahabharata. Okay. Is it not full of masala? Of course it is. In fact, so many of our films are inspired by Mahabharata. So the basic any play, whether it's a Shakespearean play or a Greek play or on Sahitya or Kavya, masala means which entertains people and tells a message and sends a message, with a moral of the story, but through a very entertaining interaction of characters. And where we live life with sorrows, joys, fight, love, romance, action, everything is a part of us, right? So when you call it a masala film, I just like it used कि मसाला के अलावा जो फिल्में होती हैं वो इसका मतलब बिना मसाले के होती हैं और उनको लुफा खाना पड़ता है। So I always followed my cinema with the good textures of painting, poetry, music, storytelling, characterizations, so that my movies can stay for decades to come and doesn't remain only one of the seasonal masa film. I like to make a film which should be remembered for years. But it not, but my attempt and my approach to filmmaking is always there. Does not matter whether it is for the cinema hall or it is for the television or it's for a mobile or it is on the theater or it is a Broadway show. It is the performance of your play as per the medium, what the medium requires. So today we are happy that we have with the new experiment of making a feature film for OTT, for Z with Z Studio, and it was a great experience for me. सर और मुझे याद है आज से करीब 2 साल पहले अक्टूबर में आपने अनाउंस किया था कि आप मुक्ता जो आपका बैनर है वो कई सारी फिल्में बनाएंगे एंड आई थिंक वो एसोसिएशन जी के साथ ही था, आई थिंक उसकी पहली फिल्म है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप दैट यू आर गोइंग टू बी मेकिंग, द काइंड ऑफ फिल्म्स जो आपको बनानी है? I think Mukta Arts and Z Studio have a great relationship. First relationship, we have a huge faith in each other. They have a faith in me as a producer, as a creative producer, as a man of commitment. So, और हमें ये faith है कि they will respect our film as a distributor, investors, and they will see that they exploit our product with a lot of dignity and for a longer time. So दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा और जो उस दिन अनाउंस किया था, आज भी मैं वही कहता हूँ कि हम जी के साथ बहुत सी फिल्में बनाने वाले हैं। तो ये तो फर्स्ट हमारा एक स्टार्ट है, उसके बाद बड़े स्टार की हो या छोटे स्टार की हो, अच्छे सब्जेक्ट लेना जरूरी है हमको और हम सब्जेक्ट 1-2 फाइनल भी किए हैं और बहुत जल्दी जैसे 21 जनवरी ये फिल्म रिलीज होती है तो हम आपको 22 जनवरी को ही दूसरी पिक्चर की अनाउंसमेंट आपको दे देंगे। जी स्टूडियो और मुक्ता आर्ट्स की फिल्म क्या है रिलीज, उसका स्क्रिप्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड वो भी आप ही डायरेक्ट करेंगे सर के प्रोडक्शन है? देखिए, जो घर का जो एक आप शुरू में जब शादी होती है तो आप हस्बैंड होते हैं तो आप कुछ कमा के लाते हैं, फिर आप फादर बन जाते हैं, फिर आप दादा बन जाते हैं, फिर आप घर के हेड बन जाते हैं, फिर आपके बेटे जो है वो कमा के लाते हैं, इसी
काम जो है डिवाइड फैमिली में हो जाता है. So I have done it all, seen it all as a director. I was there for 35 years as a director. I'm continuously doing one job only, directing. Later on, I started my film school, Whistling Wood of India, Whistling Wood International. जो आज 15 साल हो गए हैं उसमें, तो I dedicated my rest of life in building up and developing Whistling Woods, and that was a big job for me, making like 25 films. It was not easy, but as it was my daughter and my people are looking after that. And so जैसे आपने कहानी के इंटरप्रिटेशन की बात की, मैं किसी से बात कर रहा था इंडस्ट्री में और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार फलक करके एक फिल्म आई थी वो देखने गए थे, एंड वो फिल्म देखने के बाद आपने सलीम सर से बात करी थी कि आपको कैसे वो फिल्म की कहानी बहुत स्ट्रांग लगी और उसी के बेसिस पे आपने उसका एक मोर कमर्शियल वर्जन बनाया इन राम लखन विद अ मच मोर लार्जर देन लाइफ अप्रोच. इसमें कितनी सच बात है और आप इसके बारे में कह पाएंगे आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया? बिल्कुल सही बात है जो आपने सुना है कि फलक के बारे में, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है. सलीम साहब से मेरी बात भी हुई थी. देखिए, मैंने आपसे कहा कि पूरे नाट्य शास्त्र में 36 स्टोरीज हैं, 36 प्लॉट हैं, 37वां नहीं है. उस 36 पर 36,000 फिल्में लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं. अगर आप राम लखन की बात करें तो सबसे पहले एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया, जिसका नाम था याकूब था. उसके एक माँ थी, 2 बेटे थे, एक अच्छा बेटा था, एक बुरा बेटा था, और वह आखिर में बुरे बेटे को मार देती है. उस फिल्म को दोबारा बनाया गया फिर से मदर इंडिया का नाम से, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार से. वो सिर्फ एक 2 बेटे थे, एक अच्छा था, एक बुरा था. माँ को बुरा बेटा बड़ा प्यारा लगता था और बड़ा बेटा उसको वार्न करता रहता था. फिर उसके बाद फिल्म आई दीवार. दीवार में एक कहानी थी कि एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे, एक अच्छा था, एक बुरा था. माँ को बुरा बेटा बहुत पसंद आता था, बड़ा अच्छा बेटा माँ को वार्न करता रहता है. और एक कहानी राम लखन में भी आई और ये कहानी फलक में भी आई. ये कहानियां बहुत बार बन चुकी हैं सर. नॉट ए स्टोरी विच इम्पोर्टेंट. तो ये कि आप स्टोरी को बताते किस ढंग से हैं. What is your style of narrating a story? आप जान सकते हैं कि राम लखन दीवार 2 अलग फिल्में मानेंगे ना. और दीवार और मदर इंडिया 2 अलग फिल्में हैं. तो फिर एम्बियंस चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होते हैं, उसका टाइम स्पेस दोनों चेंज होता है. आज जो यंग लड़का बनाएगा, उसने एक फिल्म बनाई कपूर सन्स एंड सन्स, उसने भी राम लखन को पैदा किए थे, लेकिन वो राम लखन आ चुके थे जो कि जिनको अपना सेल्फ ज्यादा है देन की भाई के इंटरेस्ट है ना. तो सब हर 20 साल 30 साल के बाद हमारी वैल्यूज बदलती हैं, तो उसके हिसाब से, लेकिन इक्वेशन वही है. बिल्कुल सही बात है. करेक्ट एब्सोल्युटली. एंड सो एज अ डायरेक्टर लास्ट कई सालों में कई सारी फिल्मों की बात होती रहती है आपकी, जो कहते हैं कि 25 साल 30 साल 40 साल हो गए लेकिन वो फिल्म आज भी लोगों को इतनी पसंद आती है कि लोग उसके सीक्वल की भी बात करते हैं, जैसे खलनायक हो या राम लखन हो. इस पे आपका क्या कहना है? और आई थिंक आपने भी एक बार बात करी थी कि हम राम लखन 2 बनाने की सोच रहे हैं, खलनायक बनाने की सोच रहे हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब मैं 36 फार्म हाउस भी बना रहा था और मैं अपने डायरेक्टर और टीम से बात करता था, तो मैं ये बात कहता रहा था कि आप एक चीज का प्रेशर मत लो. वो प्रेशर है मार्केट का. हमारा इन्वेस्टर क्या कहेगा और हमारी ऑडियंस क्या कहेगी और कौन कौन सी दूसरी फिल्में आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं. इस बाहर की मार्केट का और पूरी इंडस्ट्री का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना. वो काम खत्म हो गया है. हमने एक ऑफर लिया स्टूडियो, बस उसने हम पर भरोसा किया है और हमको सिर्फ फिल्म बनानी है. और स्क्रीन प्ले का हर सीन, हर कैरेक्टर हमारे लिए उतना ही बड़ा भगवान है जो शुरू में था, और होना ही चाहिए. अगर हम हर सीन, हर मोमेंट को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके, उसके ऊपर हार्डवर्क करके, उसको डेडिकेशन से उसको सोचें कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है, अच्छी फिल्म बनानी है, अपने कैरेक्टर से ऑनेस्ट रहना है, तो आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है. तो वो फिल्में जो 40 रहती हैं, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये नहीं कि मेरे पास कुछ ज्यादा, मेरे पास एक ही चीज छड़ी थी, वो सिंसियरिटी. हर सीन, हर गाना, हर गाने की लाइन, हर डायलॉग एक्सीलेंट लेवल पे कब पहुंचे, जब किसी ने किया हो ऐसा कब पहुंचे. मैं कभी भी बड़ी हिट फिल्मों को फॉलो नहीं करता.
प्लॉट तो वही होते हैं, लेकिन मैं प्लॉट की नरेशन में, उसके म्यूजिक में, उसके इंटरप्रिटेशन में कभी भी हमेशा नए तरीके से कैसे कहा जाए वो मैं सोचता था, और वही काम हमने आज 36 फार्म हाउस में किया है। और सर आप राम लखन खलनायक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो एक इतनी बात है सीक्वल की? राम लखन खलनायक के बारे में पूरी मार्केट आज मेरे पीछे है, पूरी इंडस्ट्री स्टूडियोज हैं कि वो दे ऑल वांट टू मेक। तो मैं उन्हें कहता था भाई हम तो नहीं बनाएंगे, मुख्तार विल नॉट बी मेक अ फिल्म, वी कैन सेल यू द राइट्स, यू मेक द फिल्म द वे यू वुड लाइक टू मेक द फिल्म। यू सी, हमारे पास मेक के राइट्स हैं, आप लीजिए, आपको जो हेल्प चाहिए करेंगे, लेकिन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सी कहानी है। वी हैव गॉट 110 स्टोरीज इन द फाइल, न्यू स्टोरीज, 110 स्टोरीज। यस, अब वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी किस वक्त बनानी है, कब बनानी है, इस जॉनर के लिए। करेक्ट करेक्ट। ओह ऑफ कोर्स, न्यू स्टोरीज तो हमेशा उसका एक अलग ही स्पार्क रहता है रीमेक से ज्यादा। So we want to be killed then making money only. एंड सर एक आखिरी सवाल, 36 फार्म हाउस का जो कास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, संजय मिश्रा जी, विजय राज जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतना अच्छा कास्ट एक ये फिल्म के लिए आया, एंड सर एक और आपका ये प्रोडक्शन था 36 चाइना टाउन, एंड अभी आया 36 फार्म हाउस, तो ये भी एक टाइटल के बारे में और कास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? After having a good script, casting is the most important thing. अगर स्क्रिप्ट अच्छा है और कास्टिंग ठीक नहीं है तो स्क्रिप्ट फ्लॉप है। एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कास्टिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि कभी कभी इसलिए मार खा जाती हैं कि जो फाइनेंसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ये इंसिस्ट करते हैं कि आप स्टार लीजिए, उसको ले लीजिए, और हम उसको बिकता है, टिकता है, पर फिल्म में नहीं सजता है। वो फिल्म में सजना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी, परफॉर्मेंस, उसका सब हाव भाव मेरे कैरेक्टर से मिलना चाहिए। मैंने शुरू से आज तक कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जहां तक कास्टिंग का सवाल था, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, मैंने कभी ढूंढा ही नहीं। मैंने कभी जिन लोगों को लिया था, मैंने कभी उनकी फिल्में भी नहीं देखी थी, उनको मैंने लिया, स्टार्स को भी। एंड सर टाइटल के बारे में आप क्या कहेंगे? 36 फार्म हाउस। फार्म हाउस इज ए प्लेस, राइट? फार्म हाउस का मतलब ये होता है कि आइसोलेशन में जो घर होता है, दुनिया से थोड़ी दूर, जहां पर आप शांति प्राप्त करते हैं, अपना एक फार्म हाउस बनाते हैं, खेतों के बीच में जाके अपना एक फार्म हाउस का। और जो रिच पीपल हैव ए फार्म हाउस, फॉर देम इट्स अ प्लेस ऑफ देयर ऑन सॉलिट्यूड, वो फार्म हाउस है। और 36 नाम नंबर इसलिए रखा कि वहां पर जो रहने वाले हैं सबका 36 का आंकड़ा है, सब एक दूसरे से अंदर से खिलाफ ही रहते हैं, कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉन्फ्लिक्ट है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले बन जाता है। ओके ओके ओके, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।